Hello, Vachu. Welcome to JW Maths Advanced. So, I am starting a calculus video section where I'll post at least 5 problems every day from today of every topic of calculus. Okay, so we start with the limit section first. So, the first problem says that limit n tends to infinite n by n plus 1 to the power alpha, where alpha is nothing but a cube, matlab rational number, plus sine 1 by n whole to the power n is what? Options are in front of you. So pause the video before watching the solution and try it once on your own. Okay, that will be beneficial. So देखो, मुझे दिया हुआ है लिमिट n tends to infinite n by n plus 1 to the power some rational number, right, plus sine of 1 by n to the power n. When I put the limits, what happens is I can write this n by n plus 1 as 1 by 1 plus 1 by n, right? What I do is dividing both numerator and denominator by n. So now n tends to infinite, this tends to 0, 1 by n. So this tends to 1, right? So 1 to the power any rational is 1 only. And sine 1 by infinity is 0. So sine 0 is 0. So basically it's tending to 1 plus 0 to the power infinite, which is 1 to the power infinite form. So 1 to the power infinite form सबको पता होता है लिमिट्स कैसे निकालना है, right? So I'm just writing the standard form. So this is equal to, if the limit is some L, let's say the limit is L. So L is limit e to the power limit n tends to infinite. This n comes in the downwards, and we write it as n by n plus 1 to the power alpha plus sine of 1 by n minus 1, right? So we can write it as limit n tends to infinite. What I'll do, I'll separate here. Separate what? N into sine of 1 by n, first of all, right? Then plus n times n by n plus 1 to the power alpha minus 1, right? क्योंकि मुझे पता है कि this limit I can write it as e to the power limit n tends to infinite sine of 1 by n by 1 by n, right? So this will tend to, of course, 1. So you get e into e to the power something, this limit, right? Limit n tends to infinite n into n by n plus 1 to the power alpha minus 1, right? So now what to do? If I consider this limit as some capital L, let's see what we get. So L is limit n tends to infinite n times n by n plus 1 to the power alpha minus 1, right? So देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट, n को बाहर ही रखो, इसको लिख सकते हैं 1 by 1 plus n to the power alpha, like this one, right? We divide both numerator and denominator by n. So यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 by n को y लेता हूँ, right? So n becomes, this n will become 1 by y, right? So L बन रहा है capital L, and if 1 by n tends to 0, so y tends to 0, right? So y tends to 0, 1 by y, then this is y, so 1 by 1 plus y to the power alpha minus 1, right? So now you can write this as limit y tends to 0, 1 by y, 1 minus 1 plus y to the power alpha. Now the denominator will tend to
मतलब it will become like this 1 plus y to the power alpha. Y tending to 0 पे this will tend to 1, right? So you can apply L'Hopital's rule, or you can direct expand it, right, using binomial expansion. So you'll get just minus of alpha. You try this on your own, ठीक है? मैं सभी स्टेप नहीं करूँगा. So this is minus alpha, मतलब this limit is e into e to the power minus alpha. This is e to the power 1 minus alpha, ठीक है? So our option which is correct C. ठीक है बच्चों लोग, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. Okay, so the second problem, it's a comprehension type problem. Let fx is a function continuous for all x belongs to real. ठीक है? So it's a continuous function except at x equal to 0 and given such that f dash x is negative. मतलब minus infinite से 0 तक it's a decreasing function and then it's a increasing function, right? And let limit extending to 0 plus पे fx2 fx3 negative पे 0 minus पे. So definitely it's a discontinuous at 0 and f0 is 4, right? And पहला प्रॉब्लम है कि find the value of lambda for which this equation is true. So देखो पहले तो इक्वेशन पे ध्यान दो. 2 times limit f of x cube minus x square extending to 0 is lambda times limit extending to 0. मुझे ये लैम्डा को ही निकालना है. 2x की पावर 4 minus x की पावर 5. दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस. एक चीज़ ध्यान दो, 2 times limit extending to 0, मैं इसको लिख सकता हूँ x square of 1 minus x minus 1, right? And then I can write this also as lambda extending to 0 f of x to the power 4 2 minus x, right? So you can write it like this easily. अब देखो ये x square तो पॉजिटिव ही होगा एक्सटेंडिंग टू 0 पे. you go from any side of 0, from LHL or RHL, it will be positive only. x square है. ना देखो कि एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये तो नेगेटिव ही होगा, राइट? क्योंकि 0 से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस, राइट? एंड दिस इज लिमिट लैम्डा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा. सो दिस इज f0 प्लस, राइट? और मुझे पता है कि f0 माइनस पे लिमिट कितना होता है. दिस वन 0 माइनस पे 3 होता है, राइट? सो दिस इज 2 इंटू 3 एंड दिस इज लैम्डा इंटू 2, क्योंकि 0 प्लस पे वी हैव दिस वैल्यू विच इज 2, राइट? सो 2 कैंसिल होगा. सो यू गेट द लैम्डा एज 3. ठीक है, चलो फिर सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप पे चलते हैं. ओके बच्चों, सो यू हैव रेड दिस कॉम्प्रिहेंशन वेरी वेल, राइट? आई एज्यूम कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है एक्स आर पे एक्सेप्ट एट 0 एंड इट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. लिमिट 0 प्लस पे 2 है, माइनस पे 3 है एंड f0 इज 4. So based on this was the first problem, right? Next we move to the second problem. We have to find this value, right? Limit extending to 0 minus पे f of minus x into x square by this is fractional part, okay? 1 minus cos x by the greatest integer of fx. So देखो मुझे पता है कि f of minus x है, right? एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस है, मतलब दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ सम 0 प्लस, राइट? सो उसका लिमिट मुझे पता है f0 प्लस पे कितना होता है. इट वॉज 2, राइट? सो ये 2 बन जाएगा. सो यू कैन राइट द लिमिट extending to 0 minus this limit as
एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। एक चीज़ ध्यान दो, ये तो चलता रहेगा कि ये 2 बन जाएगा एफ ज़ीरो प्लस पे, ये तो पॉजिटिव ही है। ये जो 1 माइनस कॉस एक्स बाई बॉक्स ऑफ एफ एक्स है, राइट। So it is 1 minus cos x by box of f of minus 2 and we insert the limit here at x, right। तो f of minus 2 का मतलब क्या है, सॉरी f of 0 minus, f of 0 minus मतलब मुझे पता है it is 3, right। एक सेकेंड, f of 0 minus, right, yeah it is 3. So you can write this as 1 minus cos x by, the box of 3. देखो मुझे पता है कि f of 0 minus is 3, right, the limit I'm talking about, मतलब लेस देन 0 पे उसका बॉक्स आ रहा है 3, राइट। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट को निकालना है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3 ही होगा, है कि नहीं, राइट। सो वी गेट द लिमिट एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3, राइट। फ्रैक्शनल वही होगा, राइट, डिपेंडिंग ऑन कॉस एक्स। नाउ 3 ऊपर जाएगा, सो वी गेट 3 इंटू लिमिट x tending to 0 minus f of minus x into x square by 1 minus cos x, right। 0 पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, ये तो पता है लिमिट क्या था 2, सो 3 to 6 हो गया। लिमिट x tending to 0 minus x square by 1 minus cos x, this is 0 by 0, so we apply L'Hopital's 6 into 2x, right, by sin x, इसका लिमिट टेंडिंग टू 1 होता है, सो द आंसर इज 12, ठीक है। सो और ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। चलो इसी कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ओके, सो ये जो कॉम्प्रिहेंशन था, इस कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट प्रॉब्लम है दिस प्रॉब्लम, ओके। So limit x tending to 0 minus, we have some box of 3f x cube minus sin cube x by x की power 4 minus f of box of sin x cube by x is what, right। So देखो हम लोग इंडिविजुअली इसको कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, पहले तो देखो f of बॉक्स के अंदर क्या है, 3 times f of एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स बाई एक्स टू दी पावर 4, राइट। सो इसको लिख सकते हो 3f एक्स क्यूब माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू 1 बाई एक्स, नीचे एक्स क्यूब लिख सकते हो, राइट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब में है, राइट। सो यू कैन राइट एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, by x cube and then x square plus sin square x plus x sin x, right, divided by x। अब देखो तुम्हारा जो लिमिट है वो टेंस टू 0 माइनस पे, राइट। सो दिस लिमिट इज 0 माइनस, मतलब x टेंस टू 0 माइनस पे तुम्हें पता है ये पॉजिटिव होगा, राइट, बिकॉज दिस टर्म्स आर स्क्वायर एंड दिस नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, सो दिस टर्म इज पॉजिटिव। नाउ ये 0 माइनस पे ये पूरा टर्म नेगेटिव होगा, राइट, एंड एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, राइट। देखो ये एक काम कर सकते हो, एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, राइट। What I do is I divide it by x, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, ये टेंस टू 0 प्लस होगा
as x tends to 0 minus, and 1 minus sin x by sin x, sorry 1 minus sin x by x, देखो ये टेंस टू 1, थोड़ा 1 से छोटा होगा बिकॉज x टेंस टू 0 माइनस, सो दिस टेंस टू पॉजिटिव. सो बेसिकली ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बन रहा है, f ऑफ 0 प्लस बन रहा है, समझ रहे हो, एज x टेंस टू 0 माइनस, दिस टेंस टू f ऑफ 0 प्लस, और इसका बॉक्स में था राइट. f ऑफ 0 प्लस तुमको पता ही है ऑलरेडी, इट इज 2 राइट. सो एक सेकेंड, f ऑफ 0 प्लस का गया 2 है राइट, एंड 0 प्लस पे 2 है, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस था, वी गेट ए बॉक्स ऑफ f ऑफ 0 प्लस. अच्छा ये वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 0 प्लस है राइट. एक सेकेंड, शायद ये मैं एक गलती कर रहा हूँ, ये 0 प्लस नहीं होगा शायद. क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो ये तो 0 माइनस को टेंड कर रहा है राइट. अगर मैं x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब का बात करूँ, ये 0/0 फॉर्म है राइट, एज x टेंस टू 0 माइनस. सो इफ यू अप्लाई L'Hopital's 1 माइनस कॉस एक्स बाई 3x square right. Again we apply L'Hopital's, we get sin x by 6x which is 1/6. So I think this is tending to f of 0 minus, क्योंकि ये 1/6 वैल्यू आ रहा है which is positive right. तो f of 0 minus पे पता है it's 3 right, क्योंकि अभी मैंने बताया था तुम्हें 0 minus पे वो 3 होता है. So it means this is 3 right. सो एक लिमिट तो मिल गया, दिस इज 3 मतलब इसका जो लिमिट होगा एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे, इट इज़ 3 इंटू 3 विच इज़ 9 राइट. सेकेंड ये पार्ट क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे. देखो वी हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ बॉक्स साइन एक्स क्यूब बाई एक्स राइट, एज यू कैन सी हियर. इसका लिमिट क्या होगा, देखो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, साइन एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब पहले तो इंटू एक्स स्क्वायर राइट. या सही है. नाउ दिस टेंस टू 1 एंड एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 प्लस राइट. इसका मतलब f ऑफ बॉक्स ऑफ 0 प्लस हो रहा है राइट. नाउ 0 प्लस पे तुम्हें पता है इट इज़ 2 राइट. सो f ऑफ 2 आ गया, इसका बॉक्स, सॉरी इट इज़ 2, सो बॉक्स ऑफ 2 इज़ 2 राइट, है कि नहीं. एक सेकेंड, एक गलती हुआ है मुझसे यहाँ पे, ये 0 प्लस है राइट. बॉक्स ऑफ 0 प्लस मतलब क्या, f ऑफ 0 ही होगा राइट. तो f ऑफ 0 का वैल्यू सबको पता ही है, इट वॉज मैंशनड इन द प्रॉब्लम दैट f ऑफ 0 इज़ 4 राइट. सो देखो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अगर करोगे तो आंसर निकलेगा. सो 4 आ गया, मतलब 9 माइनस ऑफ 4 विच इज़ आवर सेकेंड ऑप्शन. ठीक है बच्चे लोग, चलो ओके. सो जो थर्ड प्रॉब्लम है, इट्स ए गुड प्रॉब्लम, इट्स रीड इट आउट फर्स्ट. लेट a equals to minimum of this expression where x is a real number and b is defined as limit extending to 0 this expression
राइट, साइन एक्स कॉस एक्स बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। देन मुझे ए की पावर आर, बी की पावर एन माइनस आर जीरो टू एन का वैल्यू निकालना है। सो इसके लिए मुझे ए एंड बी को निकालना पड़ेगा, राइट, दिस ए एंड दिस बी। सो पहले तो मैं एक फंक्शन मानता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, राइट, इसको एक फंक्शन मान लो तभी इसका मिनिमम वैल्यू आ सकता है। सो एफ डैश एक्स करोगे तो टू एक्स प्लस टू आएगा, राइट, वी पुट इट इक्वल टू जीरो, वी गेट एक्स इक्वल टू माइनस वन, राइट। अब एफ ऑफ माइनस वन कितना आ रहा है, टू आ रहा है, राइट। सो मेक द ग्राफ एट माइनस वन, द वैल्यू इज टू, राइट, दिस इज द पॉइंट। अब माइनस वन के इस तरफ क्या होगा, लाइक जीरो पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन इट्स इंक्रीजिंग, राइट, क्योंकि माइनस वन के इस साइड में एफ डैश पॉजिटिव है, इस साइड में एफ डैश नेगेटिव है, राइट। सो ये डिक्रीजिंग है, मतलब मिनिमा एट माइनस वन ही आ रहा है, विच इज टू, राइट। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, टू है, राइट। Next we find the b value which was given to us as limit extending to 0. This value sin x into cos x by e की power x minus x, right? So what I do is I write limit extending to 0. ये देखो जीरो पुट करने से इट्स जीरो by zero form, right? So we apply direct L'Hopital's rule. एक होगा cos square x minus sin square x, प्रोडक्ट रूल लगेगा ऊपर, एंड नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। नाउ अप्लाई z एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये तो जीरो की तरफ ही जाएगा, ये वन की तरफ, सो वन बाई टू आ रहा है, राइट। सो यू गेटिंग a as टू एंड b as हाफ, राइट। अब इसका वैल्यू को निकालना है, समीशन और ज़ीरो से एन तक, ए टू था, दिस वाज टू की वन बाई टू टू द पावर एन माइनस आर। देखो वन बाई टू की पावर एन को बाहर निकाल सकते हो, राइट। सो वी आर जस्ट लेफ्ट टू इट, टू की पावर फोर की पावर आर, राइट, आर टेंडिंग टू जीरो टू एन। सो हम लोग को क्या मिला, दैट समीशन S, what you got is summation or 0 to n 1 by 2 की power n 4 की power r, right? So इसको ये सिंपल एक GP बनेगा यहाँ से, right? 1 plus 4 1 4 2 powers up to 4 to the power n, right? So 1 by 2 की power n, a is 1, 4 की power n plus 1 minus 1 by 4 minus 1 3, right? So our answer is simply, if we arrange it, 3 into 2 की power n, ठीक है, clear? So ये answer is nothing but this, ठीक है, चलो। Okay, so जो next problem है, that is question number 4. It is a very good problem. You can practice it on your own before watching the solution. So देखो x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन डॉट 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 अप टू xn प्लस वन, जो भी टर्म्स आएगा नेक्स्ट, राइट। सो x1 इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो दे आर द रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग एक रिकर्सिव इक्वेशन दिया हुआ है, रिकर्सिव मतलब इन टर्म्स ऑफ xn एंड xn प्लस वन, ऐसे टाइप में, ठीक है। सो दिस इज गिवन फॉर ऑल n ग्रेटर देन वन, ठीक है, एंड इट इज गिवन दैट, मतलब ग्रेटर इक्वल्स टू वन होगा ये बेसिकली, एंड इट इज गिवन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट का मतलब है कि सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता मतलब क्या, द सीक्वेंस दे गो टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट, सो द लिमिट एग्जिस्ट. So that limit xn tends to infinity is defined as L. You have to find the value of 4L. पहले तो ये जो रिकर्सिव रिलेशन दिया हुआ है इसको देखते हैं एक बार, राइट। ऑलवेज
don't forget to see this, right? So ये दिया हुआ है 2 की पावर माइनस n प्लस 1 इंटू साइन एक्स एन इंटू साइन ऑफ एक्स ऑफ n प्लस 1 इज 0, राइट? एक काम करो, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ओपन दिस ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे ये दो टर्म्स आने वाला है, राइट? सो यू गेट साइन ऑफ एक्स एन प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ एक्स एन, राइट? गिव द ब्रैकेट्स, minus sine of xn into cos of xn plus 1, right? Plus 2 की power minus of n plus 1 into sine of xn into sine of xn plus 1, right? This is given to us as 0. एक काम करो, all both side में इन दो प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस एक्स एन प्लस 1 कटेगा, तो कॉस बाय साइन वी गेट कॉट ऑफ एक्स एन, राइट? माइनस गया भी कॉट ऑफ एक्स एन प्लस 1 बनेगा, ठीक है? प्लस 2 की पावर माइनस ऑफ एन प्लस 1 इज 0, ठीक है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स एन माइनस कॉट ऑफ एक्स एन प्लस 1 इज माइनस 2 की पावर माइनस एन प्लस 1. So you can write this as cot of x of n plus 1 minus cot of xn is 2 की पावर माइनस ऑफ n plus 1. तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है? So now observe that if I put cot of 1, so cot x2 minus cot x1 क्या बनेगा? 2 की पावर माइनस 2. cot of x3 n2 पुट करो, cot of x2 is 2 की पावर 2 plus 1 3, राइट? तो ऐसे जब कंटिन्यू करोगे, एट लास्ट वी गेट cot of x n plus 1. Let's say we put n minus 1 here, so we get cot of xn minus cot of नहीं, एक काम करो, xn तक ही लेके जाओ, x n plus 1, right? So if you observe, if we add this all terms, we get this cancel out, right? So we are left with only cot of, एक सेकेंड, cot xn था, right? Yeah, cot xn था. So we get cot of xn minus cot of x1, right? minus cot of xn, and we get all these summations up to 2 की पावर minus of n plus 1, right? So we get 2 की पावर minus 2, 2 की पावर minus 3, all the way up to, ये x1 था, okay, not xn, minus of n plus 1, ठीक है? So एक चीज़ पता है तुम्हें, x1 का वैल्यू tan इनवर्स 2 था, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/2. तो cot इनवर्स कैंसिल हो गया, 1/2 ही आएगा, ठीक है? सो ये 1/2 जब इस तरफ जाएगा, वी गेट cot ऑफ xn 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 क्यूब अप टू 1/2 की पावर n प्लस 1, ठीक है? अब नेक्स्ट इसको निकालना, इट्स अ जीपी, एवरीबडी नोज इट, राइट? सो a मतलब हाफ, 1 माइनस कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, हाफ, सो 1 माइनस 1/2 की पावर n प्लस 1, क्योंकि 1 से n प्लस 1 टर्म्स ये हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा. सो नाउ इफ वी अप्लाई लिमिट, देखो मुझे लिमिट ऑफ एक्सन चाहिए n टेंस टू इन्फिनिट पे. सो व्हाट आई डू इज आई अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cot ऑफ एक्सन पे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 1 हो जाएगा. सो नाउ यू कैन इजीली राइट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, cot इनवर्स 1 हो जाएगा, विच इज π/4, राइट? सो मुझे इसी का वैल्यू को निकालना था, विच इज π/4, मतलब 4l कितना हो रहा है, नथिंग बट पाई. ठीक है बच्चों लोग, क्लियर? चलो ओके, सो आज का लास्ट प्रॉब्लम ऑन लिमिट्स.
इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल्स ए बी सी आर इन ए पी. ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल है, छोटा ही बना लेता हूँ. दिस एंगल्स ए बी सी दे आर इन ए पी. मतलब 2b कितना बनेगा, a प्लस सी, राइट. एंड तुम्हें पता है a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180, विच इज पाई. तो अगर a प्लस सी बी है, मतलब 2b प्लस बी 3b बनेगा, विच इज पाई. मतलब b कितना आ रहा है, 60 डिग्री, राइट. ओके, इफ f ऑफ c इज डिफाइंड एज लिमिट a टेंडिंग टू c, some expression is given, then f dash pi by 12 is what. पहले तो देखो एक चीज, देखो एक सिंपल सा टेक्निक है यहाँ पे कि b 60 डिग्री है, राइट. देखो ये एंगल 60 डिग्री है, दिस एंगल. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चों. ओके, सो देखो मुझे ये एक्सप्रेशन निकालना है, राइट. मतलब इसका लिमिट को ट्रेस करना है, राइट. तुम्हें बी पता है ऑलरेडी, सो व्हाट आई डू इज वी अप्लाई दी कोसाइन लॉ. ओके, दिस प्रॉब्लम कैनॉट बी डन विदाउट कोसाइन लॉ एंड ऑल्सो साइन लॉ. तो कोसाइन लॉ क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ एनी एंगल बी इज उसके करस्पॉन्डिंग साइड के सी के अपोजिट स्मॉल सी होगा, ए के अपोजिट स्मॉल ए होगा, बी के अपोजिट स्मॉल बी होगा. तो कॉस बी निकालना है, तो फॉर्मूला इज इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ द अपोजिट साइड बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन ए सी. ठीक है, देखो कॉस 60 पता है हाफ होगा, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, 2 कैंसिल हो गए. सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ac. तो वी कैन राइट दिस एज माइनस 2ac इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ac, सॉरी माइनस ac. तो ये a माइनस सी होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ac. मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ac. ठीक है, ये मॉड कभी मत भूलना, हमेशा याद रखना ये चीज़. ठीक है, क्योंकि ये रूट हटाने के बाद मॉड आएगा ही आएगा, राइट. अब एक फॉर्मूला होता है, देखो ये साइड्स के टर्म्स में है, राइट. मैं इसको साइन के टर्म्स में लेके आऊँगा क्योंकि यहाँ पे साइन है. तो मैं क्या करता हूँ मुझे एक फॉर्मूला पता है, ए बाई साइन ए इज बी बाई साइन बी, दिस इज नोन एज साइन लॉ. ओके, और साइन रूल. सी बाई साइन सी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होता है. ठीक है, सो देखो ए माइनस सी कितना होगा, मतलब ए बाई के इज साइन ए, राइट. तो इफ आई डिवाइडेड बाई के बोथ साइड, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, ए बाई के माइनस सी बाई के, दैट इज साइन ए माइनस साइन सी मिलेगा, राइट. तो साइन ए माइनस साइन सी, और इस तरफ रूट ऑफ बी स्क्वायर. ए के लिए साइन ए था तो बी स्क्वायर के लिए साइन बी ही होगा, क्योंकि के को अंदर लेके जाओगे तो रूट के स्क्वायर बनेगा, मतलब अंदर के स्क्वायर बनेगा. तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी. ठीक है, सो हम लोग को क्या मिल रहा है कि मॉड ऑफ साइन ए माइनस साइन सी, राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर बी
माइनस साइन ए साइन सी, राइट। अच्छा, तुम्हें पता है कि बी का एंगल 60 डिग्री है, राइट। तो साइन 60 √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 बनेगा, राइट। तो साइन ए माइनस साइन सी इज अंडर रूट 3/4 माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस ट्रैक व्हाट इट इज, ओके। अच्छा, साइन ए माइनस साइन सी, ओके। साइन ए माइनस साइन सी का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2 cos a प्लस सी बाई 2। ये फॉर्मूला एक बार खुद कर लेना तुम लोग, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो एक बार कर लेना। मॉड ऑफ साइन ए माइनस सी बाई 2, ठीक है। कॉस पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, सो मॉड के बाहर लेके आ गया मैं। नाउ एक चीज़ है, a प्लस सी कितना था 2b, मतलब cos b दैट इज हाफ, सो दिस वैल्यू इज हाफ, राइट। सो यहाँ पे रूट ऑफ, नीचे भी एक 4 का हाफ आएगा, 3 माइनस 4 साइन ए इंटू साइन सी। तो ये 2 कैंसिल हो गया, राइट। सो हम लोग को मिल रहा है समथिंग 2 cos ऑफ मॉड ऑफ साइन ए माइनस सी by 2 is equals to under root 3 minus 4 sin a sin c। अब यहाँ पे देखो मॉड a minus c था, राइट, लिमिट a टेंडिंग टू c। तो यहाँ पे जब मॉड a minus c पुट करोगे बोथ साइड, तो a टेंडिंग टू c पे था लिमिट, राइट। a टेंडिंग टू c पे लिमिट था, मतलब ये तो डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, राइट। तो ये मॉड कितना बनेगा, ऐसे कॉस नहीं रहेगा, कॉस तो हट ही चुका है, सॉरी। तो ये 1 बनेगा, मतलब 2 बन जाएगा, राइट। सो गेटिंग दिस लिमिट एज एक सेकेंड, 2 a माइनस सी बाई 2, तो ये 1 बनेगा, 1 नॉट 2। सो दिस लिमिट वी गेटिंग एज 1, मतलब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ सी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, मतलब उसका एफ डैश सी कितना होगा 0, ठीक है, सिंपल। तो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इज 0, ठीक है बच्चों लोग, क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू इट।